Hello guys, this is Mukesh. So once again you all are welcome on our channel Physics Tadka. So in today's video we are going to discuss about the rectangular potential barrier. A barrier kind of potential, we have a particle of energy E. It is moving from left to right and facing this barrier kind of potential. So we have to find the wave function of this particle, what kind of wave function this particle can have, and what are the reflection and transmission coefficient this particle can have in two cases. If the energy of particle, there are basically two cases. The first case, if the energy of particle is less than V naught, and in the second case, if the energy of particle is greater than V naught. In both the cases we are going to calculate the reflection coefficient and transmission coefficient, but in this particular video we only focused on the first case where the energy of the particle is less than V naught. तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में, अर्लियर वीडियो में, वी हैव डिस्कस अबाउट दी सम अदर एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन. बेसिकली इन श्रोडिंगर इक्वेशन देयर इज ए पोटेंशियल टर्म. वी put the value of this kind of potential in the Schrodinger equation and will calculate the wave function of the particle. But in the earlier video we have discussed some another application of Schrodinger equation like particle in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension box, and in previous and in last video we have discussed about the step kind of potential. If we have taken a step kind of potential, what are the possible wave function that particle can have, and we also calculated the reflection and transmission coefficient for both the case E greater than V naught and E less than V naught. But in this particular video we only focused on if the energy of particle is less than V naught, so what is the what is going to be the reflection coefficient and transmission coefficient for the particle of energy E, which energy is less than, basically which energies we have taken this energy is less than V naught. So we will use Schrodinger equation to find out the value. Firstly we will find out the value of we will solve Schrodinger equation for three. Basically there in the earlier video where we have taken the step kind of potential, there are two reasons. In region first the potential is 0, in the region second there is potential V naught. It is throughout infinity, it is V naught. But in this case there are basically three reasons. The first reason where potential is taken to be 0. In second reason potential is V naught as already taken, and in the third reason, it is third reason where potential is also 0. And the reason first, you can see here, the reason first and the reason third both are the same. We are going to solve this Schrodinger equation for three reasons, particular for individual three reasons, and we're going to see that the solution of Schrodinger equation for first reason and third reason are going to be same. We'll solve the Schrodinger equation for the zero potential, and we can see that the solution we are getting is same. But in the second reason the solution will be different. In the second reason the solution will depend upon the energy of the particle. If the energy is less than V naught, then the solution will be different, and the energy is greater than V naught, then solution is also be different. So basically in this particular video we only focused on if particle energy is less than V naught, because it is some mathematical derivation, is lengthy derivation, take too much time to solve here. So in this particular video we are only talking about the E less than V naught. In next video, in separate video, we'll solve the transmission and reflection coefficient for the second case. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो लेस देन वी नॉट वाला केस है उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे फॉर थ्री रीजन, फॉर थ्री, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द E greater than V naught. So we are basically focused on E less than V naught. So what is the Schrodinger equation? Basically we are using here time independent Schrodinger equation. What is time independent Schrodinger equation? Minus h cut square d square psi over dx square plus v psi is equal to E psi. This is in general time independent Schrodinger equation. Why we are using time independent Schrodinger equation? In the last video we already discussed that thing, why we are using the time independent Schrodinger equation, because the potential we have taken here is time independent potential.
time independent potential. So that's why we are using time independent Schrodinger equation. Basically the psi can be depend upon the position and time both, but the potential is independent of time. That's why the Schrodinger equation is called as time independent Schrodinger equation. So basically we have three reasons, first, second and third. We write the Schrodinger equation for three reasons, for first reason, for second reason and for third reason, and we'll try to solve the Schrodinger equation. We'll try to find the solution of that Schrodinger equation. So for the first reason, the Schrodinger equation will be minus h cut square 2m d square. Let's say we have taken the psi first is the wave function of particle in first region, psi second is the wave function of particle in second region, and psi third is the wave function of particle in third region. Sorry, so in the first region the Schrodinger equation is going to be dx square plus 2 the potential in the first region is, we have taken the potential is 0, psi first E, and the energy of particle is E. So this equation, and similarly in the third region the potential is also 0, but the particle energy is same in the third region as well. So the Schrodinger equation for third region, d square psi third dx square is equal to E psi third. So this is the Schrodinger equation in the first and third region. And in the second region the Schrodinger equation d square psi second dx square, you taken into account that we are solving only for E less than V naught. We are not considering the particle energy is greater than V naught. You should remember this thing during the whole derivation. Is equal to in second region there is some potential, particle is facing some kind of potential V naught psi second E psi second. So this is the Schrodinger equation for three region, first region, second region and third region. For the first and third region the Schrodinger equation is look like same, d square dx square plus 2me over h cut square. तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. दिस कांस्टेंट, दिस द पार्टिकल एनर्जी इज सेम फॉर द फर्स्ट रीजन एंड थर्ड रीजन. So this constant has taken to be, this term we has taken to be k square. So d square psi 1 dx square plus k square psi 1 is equal to 0. और जो थर्ड है, सिमिलरली थर्ड को भी we can write third in third region the Schrodinger equation we can write it as d square psi third dx square plus k square psi थर्ड इज इक्वल टू 0. तो ये दो इक्वेशन होगी हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन. इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन क्योंकि थर्ड रीजन में है. तो दिस बोथ इक्वेशन आर द Schrodinger इक्वेशन इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन. तो व्हाट आर गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन? Basically this equation has a complex root. The solution of this equation will be oscillatory. The solution of equation first is going to be a to the power iota kx plus b a to the power minus iota kx, and the solution of equation third equation c e to the power iota kx plus d e to the power minus iota kx. This is the solution for first equation and third equation. इन सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें सॉल्यूशन है, इसमें एक रिफ्लेक्शन पार्ट आ रहा है, एक इंसिडेंस पार्ट आ रहा है. इंसिडेंस पार्ट मतलब द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड द रिफ्लेक्शन पार्ट मतलब पार्टिकल इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम सम बाउंड्री. देयर इज बाउंड्री, इफ पार्टिकल इज इन फर्स्ट रीजन देयर इज सम बाउंड्री V naught, so there is possibility of reflection. But in the third region, if particle enters in the third region, there is no boundary, there is no such boundary that in the particle facing in first region, because due to this reason there is no possibility of reflection. So we have to neglect this part, because क्योंकि जो third region है इसमें
थर्ड रीजन में जो पार्टिकल है उसके पास ऐसा कोई भी बाउंड्री नहीं फेस कर रहा वो, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो। थ्रू आउट पोटेंशियल जीरो है थर्ड रीजन में, तो हमें इस पार्ट को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ फिजिकली नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज देर इज़ नो सच काइंड ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू विच इट कैन रिफ्लेक्ट बैक. So we have to neglect this part. So the solution, physically the solution will be c e to the power iota kx. So in the first reason the solution we have a e to the power iota kx plus b e to the power minus iota kx. In the third reason the solution we have c e to the power iota kx. ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होंगे फर्स्ट और थर्ड रीजन में. अब हम सोल्व करते हैं. देखो सेकंड रीजन के लिए, सेकंड रीजन में सॉल्यूशन क्या होगा. देखो जो सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट रीजन में सॉल्यूशन आया हमारे पास a e टू द पावर आयोटा के एक्स प्लस b e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, और थर्ड रीजन में हमारे पास सॉल्यूशन है c e टू द पावर आयोटा के एक्स, और k है हमारे पास 2m e ओवर h कट स्क्वायर के स्क्वायर. और सेकंड रीजन में जो इक्वेशन है हमारे पास, देखो सेकंड रीजन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नोट साई सेकेंड प्लस ई साई सेकेंड, और इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2m वी नोट माइनस ई ओवर एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0. ये लिख सकते हैं हम इसको. वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वी नॉट. वी हैव टेकन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन वी नॉट, सो वी हैव रिटन दिस इक्वेशन लाइक दिस. बिकॉज यदि इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, उधर प्लस आ जाएगा, लेकिन वी नॉट ये जो टर्म है ये हमें पॉजिटिव रखनी है, तो इसलिए हमने इसको फ्लिप करके एक माइनस साइन बाहर ले लिया. इसको मान लेंगे अल्फा स्क्वायर. वी हैव टेकन दिस टर्म एज अल्फा स्क्वायर. So d square psi second d x square minus alpha square psi second is equal to 0. So you can see this equation, it is something like it has a real roots, so its solution will be exponential. तो इसका जो solution होगा psi second, इसके real root है क्योंकि because there is negative sign, you can see that there is negative sign. Because of this negative sign there is the equation, the roots of this equation is real roots. So the solution of this equation, some constant f e to the power alpha x plus some constant g e to the power minus alpha x. This is the solution in second reason. तो यहाँ पे देखो ये सॉल्यूशन है जब पार्टिकल की एनर्जी लेस देन वी नॉट है. यदि पार्टिकल की एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट देन द केस विल बी डिफरेंट फॉर द ग्रेटर देन वी नॉट. यदि पार्टिकल एनर्जी इज लेस देन वी नॉट देन वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमारे पास तीनों सॉल्यूशन आ गए. ये आ गए हमारे पास साई सेकेंड एफ ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स. ये तीनों सॉल्यूशन है. वी आर गोइंग टू यूज दैट थ्री सॉल्यूशन and we'll solve for boundary condition. We'll apply that boundary condition of wave function. Using this boundary condition we are able to calculate the reflection coefficient and transmission coefficient. So what are the definition of reflection coefficient and transmission coefficient? In the earlier video we have discussed the same thing. We have defined the reflection coefficient and transmission coefficient both. I hope you remember this thing. You remember the definition. The reflection coefficient is defined as it is the ratio of probability current density, reflected probability current density and the incidence probability current density. And the transmission coefficient we already defined as the probability current density for the transmitted wave function and the probability current density for the reflected wave function. And we already know the formula of probability current density, mathematical formula of probability current density. It is something like this: h cut 2im psi star del psi minus psi del psi star. This is the mathematical formula. You can use this formula to find out the value of reflection and transmission coefficient. So by to calculate the value of JR, you just put the value you have to put the value of psi as psi r. Psi r we have basically b e to the power minus iota kx.
if you put the value of psi I, you will get the value of ji, and the psi I we have a e to the power iota kx, and similarly psi t we have c e to the power iota kx, transmission part. By using this wave function you can calculate the value of jr, ji and jt, and by using this you will able to calculate the value of r and t. So so after calculating this you will get the value of r as b square upon a square, and the value of t as c square over a square. ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसको कैलकुलेट करने के बाद वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू पुट करके, तो हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कुछ ऐसा मिलेगा। ये कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत ईजी है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड डिवाइड दिस टू टर्म, यू विल ईजिली गेट दिस वैल्यू। तो हमें करना क्या है, बेसिकली रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, टू फाइंड द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वी बेसिकली फाइंड द रेशियो ऑफ b by a, and to find the transmission coefficient we basically have to calculate the value of c over a. If we are able to calculate the value of b over a and c over a, we are definitely can calculate the value of r and t. So let's start with the boundary condition of wave function. We'll use boundary condition to find the value of b over a and the c over a. तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो। तो पहले हम फाइंड करेंगे, इन द बिगिनिंग वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b over a. So after that we are going to solve c over a. So using boundary condition, basically there are two boundaries. First boundary at x is equal to 0 and the second boundary at x is equal to a. So there are two boundary conditions for the wave function psi first and the psi second. There are boundary x is equal to 0, and for the wave function psi second and psi 3 there are boundary x at x is equal to a. So we use two boundary condition. So first boundary condition we have psi first and psi second is both are equal at x is equal to 0, and d psi first and first derivative is also going to be equal, it is also going to be same continuous for at the boundary x is equal to 0. और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारे पास, देखो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास साई थर्ड, साई सेकेंड एंड साई थर्ड दोनों इक्वल होंगे x इक्वल टू ए पे, और इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इट इज ऑल्सो बी इक्वल एट x इक्वल टू a. So this is the boundary condition we have. We will use that boundary condition to find the value of b by a and c by a. So use that boundary condition. So we are getting basically from the first equation we are getting a plus b is equal to psi second. psi second है f plus g. तो ये हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास इस इक्वेशन को फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है हमारे पास सेकंड, देखो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा के a माइनस बी इक्वल टू अल्फ़ा f माइनस जी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी, इसको सेकंड लिख लो। थर्ड इक्वेशन आएगी हमारी यहाँ से। थर्ड इक्वेशन में डायरेक्ट x इक्वल टू a पुट करना है, a ई टू द पावर आयोटा के a प्लस b ई टू द पावर साई सेकंड लिखना है हमें, साई सेकंड है, साई फर्स्ट नहीं है यहाँ पे। साई सेकंड है हमारे पास c ई टू द पावर आयोटा के a इक्वल टू साई थर्ड f ई टू द पावर अल्फ़ा a प्लस g ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा a। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। एंड द फोर्थ इक्वेशन द लास्ट वन वी हैव द फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है पहले में, आयोटा के c ई टू द पावर आयोटा के a इक्वल टू अल्फ़ा फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, अल्फ़ा आगे आ जाएगा, f ई टू द पावर अल्फ़ा a माइनस जी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा a। सो हमारे पास ये चार इक्वेशन है। इन चारों इक्वेशन का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे b बाय a और c बाय a। तो पहले फाइंड करते हैं हम, इन द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाय a। तो इस साइड को मैं रब कर देता हूँ।
देखो b बाय ए क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो, यहाँ से हम यदि b a और b कैलकुलेट कर लें और उन दोनों का रेशो ले लें। पहले देखो हमें a कैलकुलेट करना है तो इस टर्म को आयोटा के से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो। तो इसको आयोटा के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, आयोटा के a प्लस बी, पास इक्वेशन है आयोटा के a माइनस बी अल्फ़ा f माइनस जी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a आयोटा के, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे आयोटा के प्लस अल्फ़ा f प्लस आयोटा के माइनस अल्फ़ा जी। तो 2a आ जाएगा हमारे पास, आयोटा के से डिवाइड कर देंगे 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन आयोटा के, तो ऊपर आयोटा ऊपर ले जाएंगे के f प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फ़ा बाय के जी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2a की, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली 2b निकालेंगे हम। 2b क्या आएगा हमारे पास, देखो 2b के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2b के लिए हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो हमारे पास जो 2b आएगा वो आएगा 1 प्लस आयोटा अल्फ़ा बाय के f 1 माइनस आयोटा अल्फ़ा बाय के जी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन मान लो फिफ्थ, ये इक्वेशन 6 और फिफ्थ को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास b ओवर a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b ओवर a आएगा हमारे पास, देखो k प्लस k एलसीएम ले लेंगे, k प्लस आयोटा अल्फ़ा, k प्लस आयोटा अल्फ़ा f प्लस k माइनस आयोटा अल्फ़ा g अपॉन k माइनस आयोटा अल्फ़ा f प्लस k प्लस आयोटा अल्फ़ा g। तो ये हमारे पास आ रहा है b ओवर a। लेकिन यहाँ पे देखो f और g वाली टर्म भी आ रही है, तो हमें f और g कैलकुलेट करना है इन दोनों इक्वेशन से। हमें बेसिकली देखो f कॉमन ले लो, यहाँ से f कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ये k प्लस आयोटा अल्फ़ा प्लस k माइनस आयोटा अल्फ़ा g ओवर f, थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है ये, k माइनस आयोटा अल्फ़ा k प्लस आयोटा अल्फ़ा g ओवर f कॉमन ले लिया, f ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमें g ओवर f कैलकुलेट करना और उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास b ओवर a आ जाएगा। b ओवर a से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो g ओवर f क्या आएगा इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आयोटा के ऊपर आ जाएगा आयोटा c, आयोटा के इक्वल टू c ई टू द पावर आयोटा के से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा f ई टू द पावर अल्फ़ा a माइनस जी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा a अपॉन f ई टू द पावर अल्फ़ा a प्लस जी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा a। तो यहाँ से f बाई जी की वैल्यू, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो g बाई एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास बस माइनस आयोटा के माइनस अल्फ़ा आयोटा के प्लस अल्फ़ा ई टू द पावर 2 अल्फ़ा a। इसको सॉल्व करोगे तुम, जब g बाई एफ आएगा हमारे पास माइनस आयोटा के माइनस अल्फ़ा आयोटा के प्लस अल्फ़ा टू द पावर अल्फ़ा। इसको हम लिख सकते हैं, देखो आयोटा यदि हम कॉमन लें दोनों में, आयोटा बाहर निकालें, आयोटा को कैंसिल करें तो ये बनेगा हमारे पास, देखो हमें बनाना है इस टर्म में k माइनस आयोटा अल्फ़ा और k प्लस आयोटा अल्फ़ा के टर्म में। तो ये है आयोटा के माइनस अल्फ़ा, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो ये आएगा k, नीचे आयोटा जाके ये बन जाएगा k प्लस आयोटा अल्फ़ा, क्योंकि नीचे जाएगा ऊपर जाके फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ से आयोटा कॉमन आएगा तो k माइनस आयोटा अल्फ़ा ई टू द पावर 2 अल्फ़ा a। तो ये हमारे पास आएगा g ओवर f। इस g ओवर f की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b ओवर a। तो यहाँ हम पुट करेंगे g ओवर f की वैल्यू, तो ये आएगा k प्लस आयोटा अल्फ़ा प्लस k माइनस आयोटा अल्फ़ा, g ओवर f की वैल्यू ये है k प्लस आयोटा अल्फ़ा k माइनस आयोटा अल्फ़ा ई टू द पावर 2 अल्फ़ा अपॉन k माइनस आयोटा अल्फ़ा k प्लस आयोटा अल्फ़ा माइनस k प्लस आयोटा अल्फ़ा k माइनस आयोटा अल्फ़ा ई टू द पावर 2 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा k माइनस आयोटा अल्फ़ा। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखो, इस साइड को मैं रब कर देता हूँ।
तो जो बी ओवर ए आएगा हमारे पास वो आएगा के प्लस आयोटा अल्फा माइनस के प्लस आयोटा अल्फा e टू द पावर 2 अल्फा ए अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, माइनस के प्लस आयोटा अल्फा होल स्क्वायर e टू द पावर 2 अल्फा ए। तो ये आएगा हमारे पास b ओवर a। ठीक है, तो ये हमारे पास b ओवर a। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे आगे मैथमेटिकली, तो ये आएगा हमारे पास। देखो इसको सोल्व करो आगे थोड़ा सा और। देखो के प्लस आयोटा अल्फा हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस ई टू द पावर 2 अल्फा ए। इसको हम ओपन करेंगे, इसको पूरी टर्म को हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे जब मैथमेटिकली ये जो टर्म आएगी हमारे पास स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर 2 अल्फा ए माइनस 2 आयोटा के अल्फा। इसको ओपन करोगे दोनों को और थोड़ा सा सोल्व करोगे तो 1 प्लस ई टू द पावर 2 अल्फा ए। इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, जो ये वाली टर्म अलग रख लोगे, ये वाली टर्म अलग रख लोगे, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको देखो, एक माइनस साइन है ऊपर, के प्लस आयोटा अल्फा, एक माइनस साइन बाहर निकालिए, इसको ये लिख सकते हैं 2 अल्फा ए माइनस 1, क्योंकि ये भी सेम हमें बनाने हैं, e के पावर 2 अल्फा ए माइनस 1। तो माइनस नीचे ले आए हम, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ माइनस इसमें पुट कर दिया हमने 2 अल्फा ए माइनस 1, यहाँ माइनस प्लस हो गया 2 आयोटा के अल्फा ई टू द पावर 2 अल्फा ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है बी ओवर ए। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। पे हम ई टू द पावर अल्फा ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ई टू द पावर अल्फा ए दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा के प्लस आयोटा अल्फा ई टू द पावर अल्फा ए बचेगा, यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा ए। ठीक है, ई टू द पावर अल्फा ए कॉमन ले लिया, यहाँ से भी लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा ए माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के अल्फा ई टू द पावर अल्फा ए प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा ए। दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2। दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यदि एलसीएम लेंगे तो 2 से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएगा। तो देखो बी ओवर ए हाइपरबोला में क्या आ रहा है, के प्लस आयोटा अल्फा साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए 2i के अल्फा साइन कोस, देखो ये है कोस, कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो ये हमारे पास b ओवर a है। यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमें पहले देखो b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर कैसे करेंगे, b स्टार b ओवर a स्टार a, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो k प्लस आयोटा, ऊपर वाले टर्म में k प्लस आयोटा, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई हमसे, एक नीचे k माइनस आयोटा अल्फा हमने एलसीएम लिया था, यहाँ पे एक टर्म और आएगी, यहाँ पे एक टर्म आएगी k माइनस आयोटा अल्फा, क्योंकि एक हमने एलसीएम लिया था नीचे k माइनस आयोटा अल्फा, उसको हम ऊपर नहीं ले गए थे। एलसीएम लेंगे तो वो नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी k माइनस आयोटा अल्फा। यहाँ एक स्टेप था k माइनस आयोटा अल्फा, ऊपर टर्म एक और आएगी, तो यहाँ आएगा k माइनस आयोटा अल्फा k प्लस आयोटा अल्फा। तो b बाई ए बेसिकली होगा k स्क्वायर, इन दोनों का जो स्क्वायर है वो होगा k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो k प्लस आयोटा अल्फा k माइनस आयोटा अल्फा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर में आयोटा स्क्वायर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन k स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए 2 आयोटा के ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। ठीक है, इसको यहाँ पुट करेंगे, देख लो वो गलती हुई है, वहाँ से k माइनस आयोटा अल्फा ऊपर जाएगा दोबारा। ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम लिया था नीचे, उसको यहाँ लिखा था मैंने k माइनस आयोटा अल्फा, दोबारा ऊपर जाके यहाँ भी एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। तो देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो और इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, तो
देखो ऊपर तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि कोई भी आयोटा वाले टर्म नहीं है, क्योंकि के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन नीचे वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले तो सीधे लिख दो टर्म के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगी टर्म के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस, क्योंकि आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा 2 आयोटा के ए कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। तो ये हमारे पास नीचे टर्म आएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हमारे पास बी ओवर ए आएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसका डायरेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये बन रहा है हमारे पास देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दिस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा स्क्वायर अल्फा ए दिस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस है, लेकिन माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। यहाँ पे टर्म है 2 आयोटा के अल्फा, यहाँ पे के ए नहीं है के अल्फा, यहाँ है अल्फा, यहाँ पे भी होगी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे है 2 आयोटा के अल्फा, तो यहाँ भी आएगा हमारे पास अल्फा 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 अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए को 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। हाइपरबोलिक है इसलिए 1 प्लस हुआ, नहीं तो 1 माइनस आता, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ए। तो ये होगा हमारे पास देखो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4 के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए। ठीक है, इसको जब सोल्व करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इस टर्म को ओपन करोगे, तो ये हमारे पास आएगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर है यहाँ साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ओवर ए। देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो सी ओवर ए फाइंड करना पड़ेगा हमें। सी ओवर ए कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो ये सी वाली इक्वेशन है हमारे पास और ए वाली इक्वेशन है, देखो सिर्फ ए वाली इक्वेशन होनी चाहिए जो हमने कैलकुलेट की थी। इन दोनों को ऐड करके इसको आयोटा के से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, फिर इसको ऐड किया था दोनों को, बी कैंसिल हो गया, तो ए 2a आया था हमारे पास 1 माइनस आयोटा के आयोटा अल्फा बाय के एफ प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा बाय के जी, ये 2a आया था। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को, इस 2a को इससे डिवाइड कर देंगे, तो c अपॉन 2a, नीचे e टू द पावर आयोटा के वाली टर्म भी रहेगी, इनको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या है, c ओवर c e टू द पावर आयोटा के a ओवर 2a। तो ये हमारे पास आएगा f e टू द पावर अल्फा a प्लस g e टू द पावर माइनस अल्फा a अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा जी एफ के प्लस आयोटा अल्फा जी के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा 2 के, तो ये आ जाएगा सी ओवर, तो सी ओवर ए आ जाएगा हमारे पास, एफ कॉमन ले लो, ई टू पावर अल्फा ए
प्लस जी ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा ए 2k ई टू द पावर आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा के, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ऊपर जाके, अपॉन जी बाई एफ हो जाएगा यहाँ क्योंकि एफ कॉमन ले लिया, के माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस के प्लस आयोटा अल्फ़ा जी ओवर एफ। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। यहाँ जी ओवर एफ की वैल्यू पुट करेंगे, जी ओवर एफ की वैल्यू हमने निकाली थी जैसी हमने बी ओवर ए में पुट की थी। जी ओवर एफ की सेम वैल्यू पुट करके हमारे पास जो सी बाय ए की वैल्यू आएगी, लास्ट वैल्यू आएगी पास 2 आयोटा अल्फ़ा के ई टू द पावर माइनस आयोटा के ए अपॉन नीचे सेम टर्म, नीचे के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए माइनस प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा के कोस हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए। ठीक है, तो इसको जब जी ओवर एफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे वही सेम वैल्यू, जी ओवर एफ की जो वैल्यू थी हमारे पास, जी ओवर एफ था हमारे पास माइनस के प्लस आयोटा अल्फ़ा के माइनस आयोटा अल्फ़ा ई टू द पावर 2 अल्फ़ा ए, ये वैल्यू थी। इसको जब पुट करेंगे यहाँ तो हमारे पास सी ओवर ए की वैल्यू ये आएगी। जैसे हमने बी ओवर ए कैलकुलेट किया वैसे ही सेम सी ओवर ए कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा उसको सोल्व करना है इक्वेशन को मैथमेटिकली, तो ये सी ओवर ए होगा। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है बेसिकली सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और उसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये टर्म डायरेक्ट लिख लो, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, देखो ऊपर भी आयोटा है यहाँ भी आयोटा, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि देखो यहाँ पे आएगा 2 आयोटा के अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा के अल्फ़ा, क्योंकि आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा के एक प्लस आयोटा के तो 1 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नीचे आएगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए माइनस 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 प्लस क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, देखो एक बनेगा ए प्लस बी, एक बनेगा ए माइनस बी, तो जस्ट सेम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर को स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा। नीचे वाले टर्म सेम है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में नीचे वाले टर्म सेम रहेगी। इसको सॉल्व करेंगे, को स्क्वायर को हम 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी नीचे सेम। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा देखो, माइनस 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 है तो आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 के स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो देखो k था हमारे पास, वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ k एज के स्क्वायर एज 2m e ओवर h कट स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर वी हैव 2m v नॉट माइनस e ओवर h कट स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे भी r और t की क्या वैल्यू आ रही है। देखो के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 2m v नॉट ओवर h कट स्क्वायर। तो ये होगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2m v नॉट ओवर h का, क्योंकि ये दोनों ऐड करोगे तो एनर्जी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और देखो एक टर्म है के स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर हमारे पास होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो होगा 4m स्क्वायर वी नॉट माइनस ई इंटू ई ओवर एच कट स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारे पास के स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू होगी वी नॉट माइनस ई इंटू ई इस टर्म में। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2m वी नॉट। देखो यहाँ से ये टर्म नीचे ले आओ, देखो यहाँ पे ये टर्म नीचे ले आओगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस तो ये आएगा 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर
के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा है, ये बनेगा हमारे पास। इसको नीचे ले आए हम, ये 1 हो गया, 1 + 4, ठीक है। इसको अब हम ये लिख सकते हैं 1 + 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए -1, ऊपर -1, ये लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पुट करो वैल्यू 1 + 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर, देखो 4 × 4 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर की ये वैल्यू है 4 m स्क्वायर h कट स्क्वायर होल स्क्वायर V0 - e × e अपॉन ये 1 प्लस में है, ठीक है, के स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2m V0 h कट स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, अल्फ़ा को एक बार अल्फ़ा ही लिख लो, अल्फ़ा ए, साइन वाले में एक बार अल्फ़ा ही लिख लो इसको। तो ये आएगा हमारे पास, देखो h कट की पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 + 4 V0 - e × e अपॉन साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए और V0 स्क्वायर -1। तो ये आएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट साइन हाइपरबोलिक में। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में देखो ये होगा हमारे पास 1/k स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट होगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा 1 + k स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर के स्क्वायर -1, जस्ट इसका अपोजिट, रिफ्लेक्शन का जस्ट अपोजिट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ऊपर V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए अपॉन 4 V0 - e / e -1। ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड एनर्जी। अब इन दोनों का जो सम है वो टोटल 1 होना चाहिए, इसलिए आ जाएगा ये, इनको डायरेक्ट ऐड करोगे बहुत इजी है। अब तो r और t को ऐड करोगे तो ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे केस है V0 इज़ वेरी ग्रेटर देन e, इसका मतलब जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज है। अल्फ़ा ए की वैल्यू यदि बहुत ज़्यादा लार्ज है इस केस में, जो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए की वैल्यू होगी वो होगी लगभग e⁴α/2, क्योंकि e⁻α वो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा ए बहुत लार्ज है, e⁻α वो नीचे जाके वो इन्फिनेटिव होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए होगा e⁻α/2। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास 1 + V0 स्क्वायर e⁻2 अल्फ़ा ए अपॉन 4 2 × 2 4 इंटू एक 4 नीचे से पहले ही है V0 - e × e -1। अब देखो ये जो टर्म है कंप्लीट टर्म है, ये 1 से बहुत ज़्यादा लार्ज है, क्योंकि अल्फ़ा ए 1 से बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो 1 को हम छोड़ सकते हैं। तो ये आएगा 16 V0 - e × e अपॉन V0 स्क्वायर 16 V0 × e V0 स्क्वायर e⁻² अल्फ़ा ए। यदि पार्टिकल की एनर्जी V0 से लेस है, ठीक है, यदि पार्टिकल की एनर्जी V0 से लेस है तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो जो सेकंड रीजन होगा इसके अंदर जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। यहाँ पे पार्टिकल का वेव फंक्शन ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि हमें ऑसिलेटरी वेव फंक्शन मिल रहा है पार्टिकल का, एक्सपोनेंशियल क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट थे। यहाँ पे इसके अंदर क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी लेस देन V0 है तो अंदर सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा, उसके बाद दोबारा वो ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। उसका जो मोमेंटम है वो डिक्रीज होगा इस रीजन में, फिर मोमेंटम इंक्रीज होगा। इस रीजन में जो इसका मोमेंटम या एनर्जी कह सकते हैं वो होगी 2m V0 - e, ये मोमेंटम होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो होती है हमारे पास
देखो मोमेंटम होता है, जो एनर्जी होती है वो होती है p²/2m, तो मोमेंटम होगा 2me रूट। तो इस रीजन में 2me है मोमेंटम, इस रीजन में इसका मोमेंटम 2mv0 - e हो जाएगा, ये वाला मोमेंट। और इस रीजन में दोबारा 2me, यहाँ मोमेंटम कम हो जाएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो जाएगी इस रीजन में, फिर दोबारा वो ट्रांसमिट कर जाएगा। इससे हम कहेंगे टनलिंग, इसे कहेंगे हम टनलिंग इफेक्ट। ये है टनलिंग इफेक्ट। जो पार्टिकल की एनर्जी लेस देन है फिर भी पॉसिबिलिटी है इट कैन क्रॉस दिस पोटेंशियल। In this potential, the particle while the particle crossing this potential, its momentum is going down, and after it crosses this potential, its momentum is again rises to 2me as the initial momentum। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मोमेंटम डिक्रीज हो, मतलब ये क्रॉस कर सकता है, बट क्लासिकली देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग। क्लासिकली टनलिंग नहीं होगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टनलिंग। और इसका एक एग्जांपल भी है अल्फा डिके, अल्फा डिके कह सकते हैं हम, ठीक है, या स्कैटरिंग कह सकते हैं हम, अल्फा डिके कह सकते हैं। दैट आर द एग्जांपल ऑफ टनलिंग, मतलब इसको वो टनल कर जाएंगे आराम से पार्टिकल, उसकी चाहे उनकी एनर्जी लेस है तो भी देयर आर पॉसिबिलिटी दे कैन टनल द बैरियर, ठीक है, उनको क्रॉस कर। तो इसमें देखो एक और केस बन सकता है, जैसे हमारे पास यदि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल हो जाए, E = V0। इस केस में क्या होगा, देखो E = V0 पे जो अल्फ़ा ए की वैल्यू होगी वो लगभग 0 के इक्वल होगी, और साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए है वो अल्फ़ा ए होगा, ठीक है, साइन, क्योंकि अल्फ़ा की स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू के लिए जो साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा है वो अल्फ़ा ए के इक्वल होगा, क्योंकि स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है हमारे पास 1+ क्या था, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास V0² साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अल्फ़ा ए अपॉन 4e V0 - e -1। ये जो होगा ये आएगा हमारे पास, देखो 1+ V0² अल्फ़ा² a² 4e V0 - e। अब देखो अल्फ़ा² की यहाँ वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा² है हमारे पास 2m V0 - e/h², ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ये केस है जब e V0 के इक्वल है लगभग, 1+ V0² 2m V0 - e/h² a² अपॉन 4e V0 - e -1। तो V0 - e से V0 - e कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 4 से 2 कैंसिल हो गए, 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो आएगा 1+ V0² m 1+ V0² m a² अपॉन e/h²। तो ये आएगा V0² m a² e/h², यहाँ पे एक 2 भी है तो 2, e से एक V0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि e लगभग V0 के इक्वल है, तो ये आएगा 1+ V0 m a² ओवर 2/h² -1। तो ये जो ये टर्म होगी इसे हम कहेंगे ओपेसिटी। ये डिसाइड करेगी जो ट्रांसमिशन है वो कितना होगा। द ओपेसिटी विल डिसाइड दी हाउ मच विल बी दी ट्रांसमिशन विल हैपन, ठीक है। ट्रांसमिशन कितना होगा ये ओपेसिटी डिसाइड करेगी। जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा और विड्थ जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसमिशन उतना ही कम होगा, क्योंकि -1 है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल हाई होगा, V0 जितना ज़्यादा होगा और उसकी विड्थ जितनी ज़्यादा होगी, ओपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओपेसिटी के, मतलब वो उतना ही कम होगा, ट्रांसमिशन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये इसे कहेंगे हम ओपेसिटी। तो जो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो बनता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का ये जो फॉर्मूला है, या टनलिंग से। टनलिंग कैसे होती है ये फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बनता है। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के जो फॉर्मूले हैं एनर्जी के, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या वेव फंक्शन से बन सकता है, किस टाइप का वेव फंक्शन होगा,
ठीक है। वेव फंक्शन के डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछ लिए जाते हैं, कैसा सॉल्यूशन होगा वेव फंक्शन का, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है।